started. Okay, good. Acha ji. Chale, Bismillah Rahman Rahim. So we will be talking about 8051 microcontroller. Why we are studying 8051 microcontroller? There are many controllers. I mean, 8051 is actually Intel product. Mostly in some of the countries they study PIC microcontrollers. PIC is a European brand. They are almost the same. Microcontroller by default internally they are all the same, but 8051 is actually based on the previous architecture of the microprocessor that we have studied and discussed. Am I loud and clear, by the way? Hello? Yes, sir. Okay, so this is the reason that we study, and we'll be discussing some other related stuff why we study 8051. It's about the availability of, I mean, if you try to check out microcontrol, the first thing that you will see 8051. So there is a lot of help material out there. There is a lot of study material out there, and there is a lot of application out there. So definitely 8051 is a start, but naturally you can always shift to other controllers later on. The architecture and the way they're being utilized is almost the same. So microcontroller and embedded processors. Well, we studied the processor earlier on, so we're going to be discussing initially some more fundamental differences between the controller and microprocessor, and then we'll provide the overview of the 8051 family as well. The general purpose microprocessor usually contain no RAM, ROM, input-output port, so you have to install all these things outside the microprocessor. On the other hand, microcontroller has CPU, that means the microprocessor, it has RAM, ROM, input-output ports. It also have timer, if A to D converter and other peripherals. I mean, controllers usually can have almost everything on a single chip. So the fundamental advantage of controller is that you get everything on a single chip. It has a lot of industrial utilization. You can easily utilize it for various purposes in the industry, rather than buying processor, then RAM, ROM, and modifying it. But the fundamental disadvantage of microcontroller is that it is special purpose devices. I mean, for every special purpose, a specialized microcontroller is usually designed. Microprocessor, on the other hand, has this versatility that you can have any amount of RAM, ROM connected to it. You can have any number of input-output ports that you can configure with it. So these are some basic differences between the two. If you look further, this is how the processor usually is. Then you have to connect RAM, ROM ports, timers, and serial ports. But microcontroller have everything in a single package in a single chip. Usually it's termed as MCU, microcontroller unit. That means computer on a single chip. And when you go for microprocessor, that means CPU on a single chip, central processing unit on a single chip. And we discussed previously what CPU is, which comprises of arithmetic logic unit, LE units, and other stuff. Excuse me, sir. Yes, please. हेलो सर. सर वो स्टूडेंट है, वो ज्वाइन करना चाह रहा है, लेकिन सर वो कह रहा है कि फेल टू ज्वाइन आ रहा है मुझे. The thing is, he is trying to join from an external email address. Ask him to join from the university address. It will automatically be done. ओके. अब बाकियों की मुझे रिक्वेस्ट नहीं आई, ऑटोमेटिकली ऐड हुए. ठीक है, ओके, थैंक यू. सो या मीन यू जनरल पर्पस प्रोसेसर जब आप खरीदते हैं, यूजुअली आपके लैपटॉप्स में या बाज़ मोबाइल फोन्स में भी है. यू कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ रैम रोम कनेक्टेड टू इट. यू कैन हैव इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर्स, एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट आउटसाइड. बट विद कंट्रोलर you get everything on a single chip. अच्छा, एक चीज नोट करें, when I'm discussing some diagrams, some points, and I might be skipping some of the slides. The reason is जो मैं डिस्कस करता हूँ वो नेक्स्ट स्लाइड पे इंग्लिश में लिखा होता है. इट्स आउटलाइन हियर. तो अभी प्रीवियस स्लाइड में जो चीज़ें मैंने डिस्कस की, दे आर एक्चुअली हियर. So in case I missed out something or there is anything to discuss in it, it is on the very next slide. अच्छा, जितने भी embedded products है, what do we mean by there is a course usually taught in some of the universities termed as embedded systems. So embedded systems mean when you have microprocessor or microcontroller. See, controller के अंदर भी processor ही होता है. So
If you have processor or controller as part of a fundamental processing unit inside a system, we usually term it as embedded system or embedded products. और आजकल ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट जिसमें दो से ज़्यादा ऑप्शंस हों, दैट मीन्स देयर इज़ ए कंट्रोलर प्रोसेसर इनसाइड इट. लाइक नॉर्मल आप स्विचेस देख लें जो सिर्फ ऑन ऑफ होते हैं, उसमें नहीं होगा. बट व्हेन यू हैव मोर देन टू ऑप्शंस, दैट मीन्स देयर इज सम प्रोसेसिंग लॉजिकल यूनिट जो कि लॉजिकल डिसीजन करता है. सो these are the kind of fundamental differences between embedded systems and non-embedded systems. PC laptops, mobile phone, you can also regard them as embedded systems because they have a fundamental processing unit as the microprocessor. कहाँ पे इसकी applications है? It's used in home appliances, intercom, telephone, security system, garage doors, answering machine, fax machines, home computers, TVs, cable TV. आजकल in fact आपके जो flat screen TVs आ रहे हैं, monitors आ रहे हैं, it's almost everywhere. इसी तरह ऑफिस में टेलीफोन्स, कंप्यूटर, सिक्योरिटी सिस्टम, फैक्स मशीन, सब में, प्रिंटर्स में, एवरीवेयर. इवन प्रिंटर में आपके प्रोसेस लगे होते हैं. इसके अलावा जो सम आपके ऑटोमेटिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स सिर्फ नहीं, जितने भी आपके कार्स हैं उनमें माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर ही लगा होता है, स्पेशली जो मैनुअल नहीं है, जो कि ऑटोमेटिक कार्स हैं जिसके विंडोज़ और बाकी जितने भी उसमें क्लाइमेट कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी जो है अल्टीमेटली कंट्रोलर के ज़रिए ही एडजस्ट होती है. अच्छा, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली कोशिश करते हैं कि जनरल पर्पस प्रोसेसर बनाए, उसका फ़ायदा ये है कि मीन द अदर वेंडर्स कैन कंबाइन देयर प्रोडक्ट इनटू इट एंड कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग. बट अगर आपको एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी चाहिए, जैसे कि एटीएम मशीन चाहिए या एक पर्टिकुलर ब्रांड का फ़ोन चाहिए, तो देन यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट सेटअप. होता क्या है कि हम प्रोसेसर के साथ रैम, रोम और पोर्ट लगा देते हैं, उस पर टेस्टिंग कर लेते हैं, और जब हमें पता चल जाता है कि हमारी यही रिक्वायरमेंट है, तो हम सेट करके मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि पुट ऑल दिस थिंग ऑन ए सिंगल चिप फॉर अस एंड इट बिकम ए माइक्रो कंट्रोलर. सो विच मीन्स दैट यू कैन डिज़ाइन योर ओन माइक्रो कंट्रोलर. आपको पता चल जाए कि आपको कितना प्रोसेसर चाहिए, आपको कितनी रैम चाहिए, रोम चाहिए, कितने पोर्ट चाहिए. यू कैन आस्क द मैन्युफैक्चरर कि आपको एक चिप में ये सारी चीज़ें डाल के प्रोवाइड कर लें. सो इनफैक्ट यू कैन हैव योर ओन ब्रांड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर. इट्स नॉट ए मस्ट कि जी आप कोई दूसरा कंट्रोलर उठाए किसी दूसरी कंपनी का और वही यूज़ कर लें. इफ़ इट इज़ अवेलेबल ऑलरेडी, दैट इट विल बी चीप बिकॉज आपकी मैन्युफैक्चरिंग उस पर कॉस्ट नहीं आएगी. इट इज़ ऑलरेडी इन मार्केट. सो यूजुअली कोशिश यही होती है कि जब आपको पता चल जाए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, द फर्स्ट थिंग इज़ यू लुक फॉर द कंट्रोलर दैट आर ऑलरेडी इन द मार्केट. अगेन द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. मीन्स इसके एडवांटेज ये है कि जो व्हेन यू ट्राई टू बाय मल्टीपल थिंग, प्रोसेसर लेते हैं, इंडिपेंडेंट चीज़ें लेते हैं और फिर उनको यू ट्राई टू कंबाइन देम टू प्रोड्यूस समथिंग टू वर्क, उससे कंट्रोलर ज़्यादा चीप पर पड़ता है, इसलिए कि यू गेट एवरीथिंग ऑन ए सिंगल चिप. स्पेस कम हो जाती है एंड आल्सो इट्स यूजुअली कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है, बट दीज डेज इवन द टेक्नोलॉजी कॉस्ट इज लेसर. इफ़ यू गो फॉर 8-bit माइक्रोप्रोसेसर इन द मार्केट, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी. इफ़ यू आस्क फॉर 8-bit माइक्रो कंट्रोलर, उसकी कॉस्ट कम होगी. इसकी वजह यह है कि माइक्रो कंट्रोलर की डिमांड ज़्यादा है, तो जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलप होती है नेचुरली उसकी कॉस्ट कम होती है. अच्छा, 8-bit कंट्रोलर्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल कौन कौन से हैं? देयर आर मेनी अदर्स. ये बुक जो है मेरे ख्याल में 2003 में पब्लिश हुई थी, तो उसके बेस पे द अवेलेबिलिटी इज़ मोटरोला 6811, इंटेल का 8051 है, Zilog का Z8 है, माइक्रोचिप का पिक कंट्रोलर है. इसके अलावा 16-bit कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल है, 32-bit कंट्रोलर अवेलेबल है. तो डिफरेंट कंपनीज जो है कंट्रोलर्स बनाती है इन ऑल दीज रेंजेस. 64-bit का अभी तक मैंने नहीं सुना, बट इट माइट बी अवेलेबल एनी टाइम सून इन द मार्केट. आपके फोन्स जो हैं मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा 32-bit कंट्रोलर्स ही यूज हुए. अच्छा, नॉर्मली क्या चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट वाइल कंसिडरिंग माइक्रो कंट्रोलर? उसकी स्पीड होती है, उसकी पैकेजिंग होती है, पावर कंजम्पशन कितनी है. स्पेशली आप रिमोट डिवाइस में जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे पावर अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो आपको बैटरी इंस्टॉल करनी होती है. बाज़ औक़ात उसको सोलर पावर्ड होता है या विंड पावर्ड होता है. सो पावर कंजर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर देयर. इसके अलावा आपको कितनी रैम चाहिए, कितनी रोम चाहिए ऑन चिप, कितने इनपुट आउटपुट पिंस चाहिए, टाइमर चाहिए या नहीं चाहिए,
कैन इट बी अपग्रेडेड इन फ्यूचर? अगर आपको एक अपग्रेड आ जाता है तो नया सॉफ्टवेयर सिस्टम हो तो क्या इसी को अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन? और कास्ट पर यूनिट क्या है? सो सम ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिफोर यू एक्चुअली कंसिडर अ पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा, उसके अलावा उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आपको कितनी हेल्प अवेलेबल है। लेट्स से अगर आपने 8051 पे काम कर रहे हैं और आपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना है तो क्या वो प्रोग्राम नेट पे किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है या नहीं। तो 8051 का एडवांटेज ये है कि अगर आप अभी नेट पे कर देख लें तो जो भी आपका प्रॉब्लम हो देखते हैं ऑलमोस्ट यू विल गेट इट, बिकॉज ये मोस्टली यूएस में पढ़ाया जाता है, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो इस साइड की कंट्रीज है उसमें ज़्यादातर 8051 ही पढ़ाया जाता है। तो इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा नेट पे अवेलेबल है। ओरिजिनल 8051 जो है वो एक 8051 फैमिली भी है, लेकिन 8051 ओरिजिनल कंट्रोलर का नंबर था which was actually introduced by Intel. Later on Atmel produced its variant जो आप लोग एक्चुअली अपने काम में यूज करेंगे वो 89C51 होगा, which is exactly similar to 8051। सिर्फ डिफरेंस ये है कि 8051 में जो है रोम था, सिंपल रोम था, उसको आप एक मरतबा प्रोग्राम कर लेते उसके बाद रीप्रोग्राम नहीं होता था। और जो 89C51 है उसमें एडवांटेज ये है कि उसमें फ्लैश मेमोरी होती है, जिस तरह की आपकी यूएसबी के अंदर फ्लैश मेमोरी होती है, तो उसमें आप आराम से प्रोग्राम कॉपी कर सकते हैं, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यू कैन रीप्रोग्राम ए सिंगल कंट्रोलर लाइक 10,000 टाइम्स। और द प्राइस इज आल्सो लो, इट्स अवेलेबल एट 60 रुपीज इन द मार्केट। सो एग्जैक्टली 8051 की कॉपी है जो एटमल ने इंट्रोड्यूस की है, लेकिन इसमें फ्लैश मेमोरी होती है रदर देन रोम। इसके अलावा फिलिप्स ने भी इसका वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फिलिप्स का इवन यूएसबी के फॉर्मेट में अवेलेबल है। AMD ने इसका वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इन्फिनियन ने किया हुआ है, माट्रा, डेलस, इन सब ने जो है 8051 की ही डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है और आपने प्रोडक्ट बनाए। अच्छा, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ? इट वाज एक्चुअली ओरिजिनली इंट्रोड्यूस इन 1981। इट हैज एन 8-बिट प्रोसेसर। डजंट मीन कि इसमें 8085 का प्रोसेसर अंदर लगा हुआ है, इसमें 8-बिट प्रोसेसर है। इसमें 8085 के प्रोसेसर इसलिए नहीं लगा हुआ कि ये 8051 का जो कंट्रोलर है इसमें जो ALU है इट इज केपेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। अगर आपको याद हो तो 85 का जो प्रोसेसर था दैट वाज हैविंग ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यू गाइस रिमेंबर दैट, राइट? यस सर। So that's the fundamental difference between 8051 and 8085। इसके अंदर 8-बिट प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन it has the ability to multiply and divide as well। उसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है? 128 बाइट की रैम है इसके अंदर, 4 किलोबाइट की इसमें ऑन चिप रोम है। नॉर्मली रोम मीन के प्रोग्राम मेमोरी है, ठीक है ना, और रैम मीन डेटा मेमोरी। उसके अलावा 2 टाइमर्स हैं, 16 बिट के टाइमर्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि उसका क्या यूटिलाइजेशन है। एक इसमें सीरियल पोर्ट है। सीरियल एक पोर्ट का मतलब है कि इसमें इनपुट आउटपुट दोनों करता है, लेकिन किस टाइप का है विल बी डिस्कसिंग दैट इन सीरियल कम्युनिकेशन एज वेल। 4 इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, ईच वन ऑफ देम इज लाइक 8-बिट इन साइज। 6 इंटरप्ट सोर्सेज हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो आप अपने जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर इंटरप्ट जो इसमें अवेलेबल हैं, दे आर 6। So and it has code compatibility with the latest controllers that are available। अच्छा, this is the internal architecture of this controller। इसमें क्या क्या है? इसमें इंटरप्ट कंट्रोल है, ऑन चिप रोम है, ऑन चिप रैम है, 2 टाइमर्स हैं, सीरियल पोर्ट है इसमें, ठीक है। CPU है। CPU इज एक्चुअली द प्रोसेसर जो इसके अंदर है, ठीक है। ऑसिलेटर है, बस कंट्रोल है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं इसमें, सीरियल पोर्ट है। सो ये सारे जो है दिस इज व्हाट इज इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा, 8051 में 3 वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है, एक 8031 है, एक 8052 है और एक 8051 है। सो अगर आपकी प्रोग्राम मेमोरी 4 किलोबाइट चाहिए तो 8051 इज योर चॉइस, अगर 8 किलोबाइट चाहिए तो 8052 इज योर चॉइस, और अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सटर्नल मेमोरी लगाएं तो 8031। इसलिए कि 8031 में प्रोग्राम मेमोरी अपनी नहीं है तो इसको आप नहीं प्रोग्राम कर सकते, इसके साथ आपको एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी लगानी पड़ती है। रिमेनिंग आर्किटेक्चर ऑफ 8031 एंड 8051 इज ऑलमोस्ट द सेम, सिर्फ यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी में डिफरेंस है। 8052 ऑन द अदर हैंड, इसमें ये है कि आपके पास एक तो प्रोग्राम मेमोरी डबल हो जाती है, दूसरा रैम डबल हो जाती है, 128 से 256 पे चले जाता है, एक इसमें एक्स्ट्रा टाइमर है, और इंटरप्ट सोर्सेज में इसमें ज्यादा है, देयर आर 8 इंटरप्ट सोर्सेज। अच्छा,
They are all available in different packages. 20 pin package में भी available है, 40 में भी है, 64 में भी है, and 144 pin package में भी available है. लेकिन जब हम स्टडी करेंगे that is 40 pin package. ठीक है ना. 8031 का ये डिसएडवांटेज है क्योंकि एक्सटर्नल 2 पोर्ट जो है आपके प्रोग्राम मेमोरी को कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास मेमोरी कम हो जाती है. इसके अलावा 8751 है, इसमें यूवी अल्ट्रावायलेट EEPROM अवेलेबल है. सो ये कंट्रोलर, इसका आर्किटेक्चर इसी 8051 की तरह ही है इंटरनली. The only difference is you can program it only using ultraviolet light. So it takes like 20 minutes to erase and then you can deprogram it. Atmel की 8089C51 ये वो है जो कि मार्केट में अवेलेबल है 60 रुपीज़ की. एंड दिस इज द वन, आपकी जितने भी लेब्स होंगे वो इसी के बेस पे होंगे. आप लोग के लेब्स कब स्टार्ट हो रहे हैं? सर अभी तक कुछ पता नहीं है सर, हमें तो पता नहीं. अच्छा, वो जो आपके सीआर के ग्रुप है काइंडली उसमें मैसेज कर दे ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर दूं. उसमें मैं आप नसर को ऐड कर लूंगा. सो यू गाइस नीड टू स्टार्ट योर लेब्स फ्रॉम दिस वीक और आइदर फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. ठीक है, ठीक है सर. अच्छा, सो 89C51 इज द वन दैट यू गोइंग टू बी यूजिंग. इसके अंदर जो है मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी जो है वो फ्लैश मेमोरी है. फ्लैश मेमोरी जिस तरह मैंने अर्लियर डिस्कस किया था, आपकी यूएसबी में फ्लैश मेमोरी अवेलेबल है. सो इट कैन बी प्रोग्राम एंड रीप्रोग्राम वेरी इजीली. अभी डेलस सेमीकंडक्टर ने ये न्यू इंट्रोड्यूस की हुई है. इट हैज एन ऑन चिप लोडर एज वेल अपार्ट फ्रॉम, इसको मतलब बर्नर की जरूरत नहीं पड़ती. सो यू कैन जस्ट प्लग इन इनटू योर पीसी एंड यू कैन ट्रांसफर स्टफ टू इट. लेकिन वी आर यूजिंग दिस वन 89C51. DS5000 की है, उसके अंदर RTC भी है. 89C51 में RTC नहीं है. So RTC is real-time clock. You get a real-time clock on the chip as well. So you just can provide the clock pulses and it can start use as a clock. 8051 फंडामेंटली इसको OTP बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन. जो फंडामेंटल 8051 का कंट्रोलर था वो सिर्फ एक मरतबा प्रोग्राम होता था. अगर आपसे प्रोग्राम में कोई गलती हो जाती थी तो यू हैव टू थ्रो द प्रीवियस वन एंड यू हैव टू गेट अनदर वन. तो दिस इज नॉट आइडियल एक्चुअली फॉर द यूटिलाइजेशन. इसका एडवांटेज ये है कि एक मतलब आपने प्रोग्राम करके कहीं पे इंस्टॉल कर दिया तो कोई उसका कोड चोरी नहीं कर सकता. नो वन कैन एक्सेस इट एनीमोर, नो वन कैन मॉडिफाई इट. 89C51 का कंट्रोलर का ये एडवांटेज तो है कि बार बार प्रोग्राम होता है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी है. जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, उसमें ये इंस्टॉल कर दिया और इसको कहीं भेज दिया, तो वहाँ पे कोई भी उसके प्रोग्राम को राइट कर सकता है, उससे प्रोग्राम रीड कर सकता है, उसके प्रोग्राम कॉपी कर सकता है. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इट. ठीक है, तो उसको लॉक नहीं कर सकते, लॉक कर ले कोई ओपन ना करते. आप तो लॉक कर लेते हैं लेकिन इट कैन बी स्टिल एक्सेसिबल बिकॉज इफ यू स्टार्ट यूजिंग दैट कंट्रोलर एज ए मेमोरी देन वो तो उसके पूरे प्रोग्राम हेड को बाईपास कर लेता है. जिस तरह आप कोई भी, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे तो पासवर्ड लगा लेते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर से अगर मैं हार्ड ड्राइव निकालूं और किसी एक्सटर्नल कंप्यूटर के साथ लगा दूं तो फिर तो उसको मैं एज ए मेमोरी यूज करता हूं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को तो एक्सेस ही नहीं करता. तो आपका पासवर्ड वगैरह सारा जो है अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता है. इसलिए कि द थिंग इज वी कैन देन इट्स जस्ट ए मेमोरी, सो आई कैन एक्सेस एनी पार्ट ऑफ इट. यू अंडरस्टैंड दैट राइट? ठीक है सर. यस. हाँ, तो या दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स. अच्छा, 8051 फिलिप्स की जो इंट्रोडक्शन है, फिलिप्स ने इसमें ADC भी डाला हुआ है, A to D कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर. इसमें एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स डाले हुए हैं. ठीक है, और इसमें दो ऑप्शंस हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल की भी है, फ्लैश की भी है. ये फिलिप्स ने जो इसकी मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस की हुई है. सो हाँ, वी आर गोइंग टू बी यूजिंग दिस वन दैट 8089C51. अब जितने भी लेब्स हैं उसमें भी ये यूज करेंगे. ठीक है, इंटरनल आर्किटेक्चर सबका सेम है, सिर्फ बाद में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, बाद में नहीं है. अच्छा, हार्डवेयर कनेक्शंस और इसका हेक्स फाइल जो कि इसमें प्रोग्राम डालना होता है वो क्या चीज़ है. ओके, 8051 फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसमें मेनली हम 89C51 ही डिस्कस करेंगे, लेकिन 89C52 इज सिमिलर टू 8052 और बाकी ये 89C4X0 विच इज आल्सो सिमिलर टू 8051. अच्छा, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है और जो आप लोग यूटिलाइज करेंगे, दैट इज 40 पिन पैकेज. डिफरेंट पैकेजेस में अवेलेबल है. डुअल लाइन पैकेज, डिप पैकेज, उसके अलावा क्वाड फ्लैट पैकेज है, उसके अलावा LLC लीड चिप कैरियर है.
ये आप बोर्ड पे डिफरेंट चिप्स की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो दीज आर सम ऑफ देम। बास जो है वो जस्ट प्लेस कर देते हैं, बास जो है वो सरफेस माउंट पे सोल्डर करना पड़ता है, और डिप वो पैकेज है जिसके लिए आप ड्रिलिंग करते हैं, सुराख डालते हैं, उसके दूसरे एंड पे जो है वो उसको वो करते हैं, यू एक्चुअली सोल्डर इट। सो दोज आर द वंस दैट यू गोना बी यूजिंग इट। अच्छा, मार्केट में बास कंपनीज जो है 20 पिन पैकेज भी 8051 का उन्होंने अवेलेबल किया हुआ है। सो यू माइट सी ऑन सम ऑफ द बोर्ड 89C51 कंट्रोलर ही होगा, लेकिन उसके नंबर ऑफ पिन्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ 40 पिन पैकेज जो है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is the controller that we're going to be using during this study. It's a 40 pin package. If you can see, it has a VCC which is connected to 5 volt. It has a ground, ठीक है, connected to 0. अच्छा, इसके अलावा इसमें XTL1 और XTL2 ये दोनों, इन दो पिन्स के साथ हम यूजुअली जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं एक्सटर्नली, जो कि इसको क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है। दैट्स हाउ इट रन्स। मीन सेंस ऑफ टाइम होना चाहिए ना इसको, because the controller is a sequential circuit. It has to go from one state to another stepwise. It has a processor inside it. तो उसको यहाँ पे क्लॉक सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। बाकी इसमें 4 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1 8 बिट का, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप फर्दर इन्हीं स्लाइड्स में। इसके अलावा इसमें एक्सटर्नल एक्सेस है कि अगर आपने एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करनी है या इंटरनल, सो इस पिन को अकॉर्डिंगली अगर आप ग्राउंड के साथ लगाते हैं इसका मतलब है एक्सटर्नल मेमोरी यूज हो रही है प्रोग्राम के लिए, और अगर इसको VCC के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब है आप ऑन चिप मेमोरी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम मोड में ये प्रोग्राम एज ए प्रोग्राम पिन यूज होता है, अदरवाइज इट इज यूज एज ALE एड्रेस इनेबल, जो कि यहाँ पे पोर्ट 0 आपने चेक किया होगा, इट हैज एड्रेस एंड डेटा लाइंस। तो इन दोनों को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए यू नीड ALE, एंड देन यू हैव प्रोग्राम स्विच इनेबल। सो ये एक पिन है जो कि एक्सटर्नल चिप को इनेबल करवाता है इन केस यू आर यूजिंग द प्रोग्राम फ्रॉम देयर, ठीक है। बाकी पोर्ट 3 के भी डुअल पर्पस पिन्स हैं, जैसे रिसीव डेटा, ट्रांसमिट डेटा। ये 2 इंटरप्ट्स हैं, T0 एंड T1। इसके अलावा 2 टाइमर्स हैं, टाइमर 0, टाइमर 1। राइट पिन है, रीड पिन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये 2 पिन्स, दीज आर दी कनेक्टेड टू क्रिस्टल ऑसिलेटर। We are going to be discussing all of them one at a time. It's just to provide you the overall view के 8051 कंट्रोलर के कितने पिन का पैकेज है और इसमें एक्सटर्नली क्या एक्सेसिबिलिटी। सो सबसे पहले क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात करते हैं। XTL1 और XTL2 के दरमियान हम क्रिस्टल लगाते हैं और 2 उसके साथ 30 पिकोफैराड के कैपेसिटर लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपको मार्केट में एग्जैक्टली 30 पिकोफैराड नहीं मिलता, इट डजंट मीन कि आपकी फ्रीक्वेंसी इससे इम्पैक्ट होती है। यू कैन यूज अल्टरनेट, ठीक है ना, इससे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली क्रिस्टल जो है उस वो जितने भी फ्रीक्वेंसी का होता है उतनी फ्रीक्वेंसी यूजुअली प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? हेलो सर रिपीट करिए, इसकी समझ नहीं आई सर। देखें, आपको याद हो प्रोसेसर के 2 पिन पे हम क्लॉक सोर्सेस प्रोवाइड करते थे, एक्सटर्नल क्रिस्टल लगाते थे। यू रिमेंबर दैट राइट? 8085 में। तो these are exactly the same। यहाँ पे भी जो है ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये 2 पिन्स के साथ, और इसके साथ ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इसके दूसरा एंड जो है ग्राउंड किया हुआ है। ये 2 पिन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं। हर एक सीक्वेंशियल सर्किट को क्लॉक सोर्स प्रोवाइड करनी होती है बाहर से। इसमें सिर्फ मैंने ये बात की कि ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं ये यूजुअली अगर 30 पिकोफैराड का आपके नहीं मिलते, 15 के मिलते हैं या 40 के मिलते हैं, इट डजंट मेक मच डिफरेंस, यू कैन स्टिल यूज इट। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर, क्लियर। ठीक है, हम ये सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अभी। ये सिर्फ क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद नहीं, इसके अंदर जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर ऑलरेडी होता है, बट यू नीड एन एक्सटर्नल क्रिस्टल टू एक्टिवेट दैट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं अवेलेबल और आप किसी दूसरे सोर्स से क्लॉक पल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि 555 टाइमर हो या किसी भी दूसरे सोर्स से, तो फिर आपको सिर्फ XTL1 के साथ उसको कनेक्ट करना है। XTL2 को आप ओपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो पिन नंबर 19 पे है यूजुअली। सो दैट इज व्हेन you don't have crystal and you want to use some other frequency source। अच्छा, यूजुअली आपको मार्केट से आराम से 12 मेगाहर्ट्ज का चिप वो क्रिस्टल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो 10 से भी काम चलेगा, 1 मेगाहर्ट्ज से भी काम चलता है, लेकिन थोड़ा सा
स्लो प्रोसेस होगा। दूसरा, आपको सारी टाइमिंग जो है अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट इज रीसेट पिन। पिन नंबर 9 जो है यूजुअली दैट इज रीसेट पिन। अगर आपको कंट्रोलर को आपने रीसेट करना है, सो दिस इज योर पेन। सो ये क्या करता है, जब आप रीसेट करते हैं तो ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 0 करता है, DPTR को 0 करता है, कम्युलेटर को 0 करता है, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड मीन फ्लैग रजिस्टर को भी 0 करता है, स्टैक पॉइंटर में 07 कॉपी करता है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि स्टैक पॉइंटर में 07 क्यों होता है। रजिस्टर B को 0 करता है और P0 टू P3 जो पोर्ट्स हैं उन पे FF भिजवाता है। ठीक है, जब आप रीसेट करते हैं कंट्रोलर को तो सारे पोर्ट्स एज ए इनपुट पोर्ट्स कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। ये चीजें याद में ज़हन में रखें। जब आप ऑन करते हैं, ठीक है, जब आप कंट्रोलर को ऑन करते हैं तो सारे पोर्ट एज ए आउटपुट कॉन्फ़िगर होते हैं, लेकिन जब आप उसको रीसेट करते हैं तो सारे पोर्ट एज एन आउटपुट कॉन्फ़िगर होते हैं। ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है सर एक दफा दोबारा रिपीट करें, देखें आपकी आवाज कट आ रही। यहाँ पे 4 पोर्ट्स है कंट्रोलर में, उनको कॉन्फ़िगर करना होता है आइदर एज एन इनपुट पोर्ट और एज एन आउटपुट पोर्ट। उन पोर्ट पे जब आप 1 भिजवाते हैं तो वो एज एन इनपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर होते हैं, उन पे आप 0 भिजवाते हैं तो वो एज ए आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर होते हैं। ये किस तरह होते हैं वो बाद में हम प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप कंट्रोलर को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो सारे पोर्ट एज एन आउटपुट कॉन्फ़िगर हुए होते हैं, लेकिन अगर कंट्रोलर को आप रीसेट करते हैं तो सारे पोर्ट एज एन आउटपुट कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। ये फर्क याद रखिएगा। ठीक है सर जब ऑन भी करते हैं फिर भी आउटपुट कंसीडर होता है, और जब रीसेट भी करते हैं तो फिर भी आउटपुट होता है कंसीडर? नहीं, लेट मी रिपीट। मजे की बात ये कि रिकॉर्ड हो रहा है, सो यू वुड बी एबल टू लिसन टू व्हाट आई सेड। आई सेड कि जब आप ऑन करते हैं तो एज एन आउटपुट होते हैं, लेकिन जब आप रीसेट करते हैं तो एज एन इनपुट होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। और उसके अलावा जब आप रीसेट करते हैं तो ये बाकी वाले काम होते हैं। प्रोग्राम काउंटर 0 हो जाता है, DPTR 0 हो जाता है, कम्युलेटर 0 हो जाता है, PSW इस केस में फ्लैग रजिस्टर को कहा जाता है तो वो भी 0 हो जाता है, स्टैक पॉइंटर आपका 07 पे चला जाता है, रजिस्टर B 0 और आपके तमाम पोर्ट पे FF चला जाता है। दैट मीन्स दे आर कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट पोर्ट्स। ठीक है, अच्छा, ये इसकी सर्किटरी है। ठीक है ना, अगर आपने पावर ऑन रीसेट करवाना है तो यू कनेक्ट इट डायरेक्टली विद द पावर। सो जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये रीसेट भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली रीसेट करना चाहें मैनुअली तो देन यू हैव टू कनेक्ट दिस स्विच। तो उसमें क्या करना होता है, यू हैव टू प्रेस द बटन एटलीस्ट फॉर 2 मशीन साइकिल। आप नॉर्मली जो ही प्रेस करते हैं 2 मशीन साइकिल हो ही जाते हैं, इसलिए कि इट रन एट द स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट। ठीक है, सो दिस इज यूर सर्किटरी। अगर आप ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं ये आपकी सर्किटरी हो जाती है। इवन आप जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें इम्प्लीमेंट करते हैं वहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। ओके। नो सर रिपीट करें सर। अच्छा, दिस इज द सर्किटरी फॉर द रीसेट। ठीक है, अगर आप पावर ऑन रीसेट करना चाहते हैं दैट मीन्स कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो वो उसी वक्त रीसेट भी हो जाए। तो दिस इज द सर्किटरी। आपको ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर लगाना पड़ता है विद पिन नंबर 9। ठीक है, अगर चाहते हैं कि आप एक रीसेट बटन एक्स्ट्रा लगा दें तो आपको कैपेसिटर के पैरेलल में, ये जो कैपेसिटर है 10 पिकोफैरड, इसके पैरेलल में आपको एक स्विच लगाना पड़ता है। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम यू कैन रीसेट योर सर्किटरी बाय प्रेसिंग दिस बटन। लेकिन इस बटन को आपने मिनिमम 2 मशीन साइकिल तक प्रेस करना होता है, विच इज यूजुअली काइंड ऑफ इन मिलीसेकंड। ठीक है, तो दीज आर दी रीसेट सर्किटरीज, जो कि आप अगर ब्रेडबोर्ड पे सर्किट बनाते हैं या आप किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो दिस इज हाउ योर सर्किटरी इज गोइंग टू लुक लाइक। अच्छा, नेक्स्ट है पिन नंबर 31 विच इज कॉल्ड EA, एक्सटर्नल एक्सेस। ठीक है, इसका क्या काम है, ये बताता है कि आपका प्रोग्राम जो है कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ है या बाहर लिखा हुआ है। देखें 8031, 8051 और 8052 दे आर ऑल कोड कंपैटिबल, लेकिन 8031 के अंदर प्रोग्राम
रोम नहीं होता तो इसके अंदर आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते। उस केस में ये पिन जो है वो ग्राउंड के साथ लगा होगा हमेशा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप कंट्रोलर को स्टार्ट करते हैं तो ये बाहर से प्रोग्राम रीड करेगा, जिस तरह के प्रोसेसर रीड करता था। इसमें ऑन चिप रोम नहीं है, रैम है, बाकी सारी चीजें हैं। बाकी इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू 8051। सिर्फ ये फर्क है कि प्रोग्राम मेमोरी इस चिप के अंदर नहीं होती, प्रोग्राम मेमोरी आपकी बाहर होती है, रोम होती है एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, अगर 8051 लेट से उस केस में आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है और आपका प्रोग्राम 4 किलोबाइट से ज्यादा है, और 8051 में तो रोम की साइज जो है वो 4 किलोबाइट है, तो उस केस में अगेन आपको एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी लगानी होती है। एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पिन को जो है ग्राउंड के साथ लगाएंगे। तो जब ये कंट्रोलर स्टार्ट होगा तो ये एक्सटर्नल मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट करेगा और उनको फिर एग्जीक्यूट करेगा। नॉर्मली कोशिश यही होती है कि आप एफिशिएंट कोडिंग करें और आपका कोड कभी भी 4 किलोबाइट से ज्यादा ना हो। उस केस में जब आपका कोड 4 किलोबाइट से कम हो और आपने वो प्रोग्राम जो है 8051 कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ हो, तो उस केस में ये पिन जो है इट शुड बी कनेक्टेड विद वीसीसी। आप अक्सर पूरा सर्किट बनाएंगे, आप नोट करेंगे प्रोग्राम सब कुछ आपका सही चल रहा है, ठीक है। पिन 31 नॉर्मली अगर कोई पिन आप कनेक्ट नहीं करते हैं इट इज कंसिडर्ड एज हाई, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपने पिन 31 को वीसीसी के साथ कनेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो आपका कोई भी प्रोग्राम हार्डवेयर चिप में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो इनिशियल 3 चीजें मैंने बताई, देखें, एक आपने वीसीसी लगाना है और ग्राउंड लगाना है, दूसरा आपने XTL1 और XTL2 के साथ ये लगाना है, ठीक है, थर्ड आपने रीसेट सर्किट लगाना है, ठीक है, और फोर्थ आपने पिन 31 को वीसीसी के साथ लगाना है। आपने चाहे कोई भी प्रोग्राम कंट्रोलर में लिखा हुआ हो, जब तक ये सर्किटरी आपने नहीं बनाई होगी आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। जी सर, ये लेकर वीपीपी है, आप बोलते वीसीसी हो, ये क्या है? मैं वीपीपी की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ईए की बात कर रहा हूं और वीसीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पिन को, पिन 31 को वीसीसी मीन 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है। ये जो स्लैश वीपीपी है ये अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये अभी तक मैंने नहीं डिस्कस किया। सही है सर। ठीक है सर। और सर जब हम इसे वो क्या है, जब सर हम इसे एक्सटर्नल मेमोरी प्रोवाइड करेंगे तो फिर इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे? इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर ग्राउंड के साथ? सही है। जी जी जी, ठीक है। ये बेसिक कनेक्शंस हैं, ये जहन में रखें। ये कनेक्शंस आप नहीं करेंगे, आप चाहे सिंपल प्रोग्राम लिखें या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रखें, आपका कंट्रोलर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये इनिशियल कनेक्शंस दे आर इंपॉर्टेंट। ये सिमुलेशन में तो काम करेगा, सिमुलेशन में आप कोड लिखोगे, रन करोगे, काम करेगा, लेकिन ब्रेडबोर्ड पे आप बनाओगे ये सर्किटरी नहीं होगी, ये काम नहीं करेगा। आप सिंपल एलईडी ऑन आपका प्रोग्राम लिखो, काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर सर। अच्छा, अब आते हैं इस वीपीपी की तरफ। व्हाट इज वीपीपी? जब अगर आपने प्रोग्राम कंट्रोलर के अंदर रोम में लिखना है तो फिर यहाँ पे इसी पिन को हम लगाते हैं 12 वोल्ट के साथ। नॉर्मली बर्निंग और प्रोग्रामिंग जो है वो हाई वोल्टेज पे होती है, ठीक है ना। तो अगर आपने प्रोग्राम देखें, 2 मोड्स होते हैं, एक होता है प्रोग्रामिंग द चिप, द सेकंड इज रनिंग द चिप। पहले आपने प्रोग्राम कंट्रोलर के अंदर ट्रांसफर करना होगा, फिर उसके बाद उसको रन करेंगे ना। जब आप प्रोग्राम कंट्रोलर के अंदर ट्रांसफर करेंगे उस टाइम पे ये पिन जो है 12 वोल्ट के साथ लगा होता है। सो ये वीपीपी वो 12 वोल्ट को शो करता है। इज इट क्लियर नाउ? नो सर, सर यस सर, रिपीट कर। क्लियर सर। ओके, सर रिपीट कर। लेट मी रिपीट अगेन, ठीक है। ये प्रोग्राम कंट्रोलर के 2 मोड्स होते हैं, एक मोड है प्रोग्रामिंग, दूसरा रनिंग। प्रोग्रामिंग मीन आप प्रोग्राम कंट्रोलर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में ये पिन जो है वो ये 12 वोल्ट वीपीपी के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। उसको प्रोग्रामिंग मोड बोलते हैं।
जब रनिंग मोड हो तो फिर अगर आप इंटरनल मेमोरी यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए तो इसको 5 वोल्ट के साथ वीसीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप एक्सटर्नल कोड को यूज कर रहे हैं तो आप इस पिन को फिर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर में एनर्जी ज्यादा यूज होती है कि क्या कि इसको 12 वोल्ट से के साथ कनेक्ट करते हैं? नहीं, कोई एनर्जी ज्यादा कम नहीं होती, बिकॉज एनर्जी इज लाइक वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, राइट। तो मैं करंट की बात ही नहीं कर रहा। ये बाय डिफॉल्ट दोनों में डिफरेंशिएशन के लिए जो ओरिजिनल चिप बने हुए हैं उनके डिजाइन इस तरह है। व्हाई आई डोंट नो। आपने नोट किया होगा, आप कंप्यूटर के अंदर आपके पास पावर सप्लाई से 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स निकलती हैं। एक येलो होता है, एक रेड होता है और एक वो ब्लैक होता है, ठीक है ना। वो जो येलो है वो 12 वोल्ट है। जब भी आप हार्ड ड्राइव में कोई चीज राइट करते हैं ना तो उसके लिए 12 वोल्ट यूज होता है, लेकिन जब कोई रीड कर रहे हो तो उसके लिए 5 वोल्ट यूज होता है। आपने नोट किया ये चीज? यस सर। अच्छा, मुझे अभी तक ये 12 नो सर, मैंने अभी तक नोट नहीं किया सर। आप अपना कंप्यूटर खोलें या आपके पास लैपटॉप है तो पेचकस निकालें और खोलें तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी नहीं, बाद में ट्राई कर लीजिएगा, अभी तो क्लास चल रही है, ठीक है। यू नीड योर लैपटॉप राइट नाउ। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास 2 और पिन हैं। एक है PSEN प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ठीक है, और दूसरा है ALE एड्रेस लेच इनेबल, ठीक है। PSEN क्या कहते हैं? इट इज यूजुअली कनेक्टेड विद द आउटपुट इनेबल पिन ऑफ रोम। अगर आपने एक्सटर्नल मेमोरी से प्रोग्राम लोड करना है, यूज करना है, तो इट इज यूजुअली कनेक्टेड विद दैट। ALE आप लोगों ने प्रीवियसली स्टडी कर चुके हो कि इट इज यूज्ड फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा लाइंस। रिमेंबर दैट? जो 74373 का चिप हम लगाते थे और डीमल्टीप्लेक्स करते थे। यस सर, क्लियर। तो ये लेच इनेबल ALE वहां पे यूज होता है, ठीक है। सो ये इन दोनों पिन का पर्पस हुआ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 4 पोर्ट्स हैं कंट्रोलर में। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। पोर्ट तो आप लोग समझते हैं ना। पोर्ट मीन्स कि अगर आपने Yes, sir. एक्सटर्नली किसी कहीं डेटा भिजवाना हो या रिसीव करना हो, उसके लिए पोर्ट्स यूज होते हैं। So these are 8-bit ports each. Can you guys turn that off, please? Thank you. Okay. So these are 4 different ports. Port 0, port 1, port 2. Acha. All these 4 ports can be configured to be used as an input or as an output. मीन इसमें से हर एक पोर्ट को आप एज एन इनपुट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और एज एन आउटपुट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर आप बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पोर्ट को एज एन इनपुट के तौर पे यूज करना है या एज एन आउटपुट के तौर पे, तो इस तरह तरीका ये है कि अगर आपने किसी पोर्ट को एज एन इनपुट यूज करना है तो आप उस पे भिजवाएंगे 111 एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये चीज ध्यान में रखें, बाद में इट इज ट्रीटेड एज डेटा, ठीक है। प्रोग्राम के शुरू में अगर आपने किसी पर्टिकुलर पोर्ट को एज एन इनपुट कॉन्फ़िगर करना है, उस पे 111 भिजवाएं। अगर एज एन आउटपुट करना है तो उस पे 000 भिजवाएं। ये हम प्रोग्रामिंग में जब डिस्कस करेंगे, यू विल सी हाउ इट हैपेंस, बट ये फिलहाल सिर्फ याद रखें कि 111 भिजवाने से इनपुट हो जाता है और 000 भिजवाने से ये आउटपुट हो जाता है। इसी तरह हर एक पोर्ट का जी इसी तरह हर एक पोर्ट का एक एक पिन जो है, इंडिविजुअल पिन, कितने पिन हैं? 4 पोर्ट्स हैं, हर एक पोर्ट 8 बिट का है। सो 8 4 आर 32, देयर आर 32 पिन। इसमें से हर एक पिन को आप एज एन इनपुट और एज एन आउटपुट यूज कर सकते हैं। मीन यू कैन कॉन्फ़िगर इंडिविजुअल पिन फॉर रिसीविंग डेटा और फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, ठीक है। अगेन उसके लिए क्या करेंगे, अगर एक पिन पे आप 0 भिजवाते हैं तो वो आउटपुट के तौर पे कॉन्फ़िगर हो जाता है, अगर उस पे आप 1 भिजवाते हैं तो वो एज एन इनपुट हो जाता है। अगेन लेट मी रिपीट समथिंग, ये चीज हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम इनमें से एक पिन को इनपुट और दूसरे को एज एन आउटपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर?
यस सर। यस सर, Yes. क्लियर सर। So, सर एक so it पोर्ट means आधा इनपुट और आधा आउटपुट के लिए यूज नहीं कर सकते। आधा नहीं कर सकते, यस लेकिन इसके इंडिविजुअल पिंस को आप चार को, इन चार को आउट के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन हर एक पिन एज इंडिविजुअल ट्रीट होगा। तो आप उसे नोट करें, देयर आर 32 पिंस जिसको आप आइदर एज एन इनपुट और एज एन आउटपुट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, और ये सब कुछ आपने प्रोग्राम के शुरू में करना होता है, उसके बाद नहीं। बाद में जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे दैट मींस यू आर सेंडिंग डेटा और यू आर रिसीविंग डेटा। कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम के शुरू में होती है, ठीक है। शुरू में आप 0 भिजवाएंगे तो इट विल बी कॉन्फ़िगर एज एन आउटपुट, 1 भिजवाएंगे इट विल बी कॉन्फ़िगर एज एन इनपुट, चाहे पिन हो या पोर्ट, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अब एक एक पोर्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोर्ट 0 की तरफ आते हैं। पोर्ट 0 में 8 पिन हैं, ठीक है। P0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7, ठीक है ना। ये 8 पिन हैं। इनको, इस पोर्ट को आप एज एन इनपुट आउटपुट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इसके इंडिविजुअल पिंस को इनपुट आउटपुट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल मेमोरी लगाई हुई है, तो एक्सटर्नल मेमोरी के लिए अगर आपको याद हो, हमें एड्रेस और डेटा लाइंस चाहिए होती हैं। रिमेंबर दैट? यस सर। यस हाँ, तो दिस पोर्ट एक्ट एज द फर्स्ट 8 लाइंस, जिस तरह हमारे पास प्रोसेसर में था। तो फिर ये P0 ये चीज खत्म हो जाती है, फिर आपके ये पिंस रिप्रेजेंट करते हैं AD0, AD1, AD2, AD3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इनका रोल डिफरेंट हो जाता है। यही पिंस होते हैं, दे नो लॉन्गर एक्ट एज ए पोर्ट, दे एक्ट एज एड्रेस डेटा लाइंस, ठीक है। तो ये 8 लाइंस एक्सटर्नल एड्रेस और डेटा लाइन के तौर पे काम करते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप इसको एज ए पोर्ट के तौर पे यूज करते हैं एक्सटर्नली, तो इस पोर्ट का जो आउटपुट है इट इज एक्चुअली ओपन ड्रेन, ठीक है। ये चीज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के कोर्स में पढ़ेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह इंडिविजुअल गेट्स बनते हैं ट्रांजिस्टर से। तो बाज़ जगह पे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओपन ड्रेन या ओपन कलेक्टर टाइप आईसीज बनती है। अगर बीजीटी से बनी हुई हो तो ओपन कलेक्टर होगी, अगर मॉसफेट से बनी हुई हो तो उसको ओपन ड्रेन बोलते हैं। उससे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम हो जाते हैं, आपकी चिप की कॉस्ट कम हो जाती है। क्योंकि यूजुअली आपने एक चीज नोट की होगी कि एक चिप हमेशा दूसरे चिप के साथ ही कनेक्ट होता है, बहुत रेयरली वो जाके किसी एक्सटर्नल चीज के साथ लगा होता है। ये चीज आप लोगों ने नोट की है ना? मेरे ख्याल में नहीं नोट की होगी बाज लोगों ने। अगर आपको अभी तक वो येलो लाइंस नजर नहीं आई कंप्यूटर के अंदर, तो ये तो बिल्कुल नहीं नोट की होगी। सो या मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों ने नोट की है। तो चिप हमेशा हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे चिप के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन जब आप इसको अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ लगाते हैं, जैसे कीपैड हो गया या कोई मॉनिटर हो गया जो कि चिप नहीं है, उस केस में आपको पुल अप रजिस्टर लगाने होते हैं। तो पोर्ट 0 को जब आप लोग यूज करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटेशन में, तो ये इस पर्टिकुलर पोर्ट में आपको इस तरह एक्सटर्नल रजिस्टर 8 लगाने होंगे। 10 के, 100 के, इनमें से जो मतलब 20 के, दे ऑल शुड डू, ठीक है। तो वो आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो ओनली देन दिस पोर्ट विल वर्क प्रॉपरली, अदरवाइज इट वोंट वर्क। क्यों? वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के कोर्स में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ओके सर। यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रखें कि अगर आप पोर्ट 0 को यूज करते हैं तो वहां पे, और इसको किसी एक्सटर्नल एलईडी या किसी कीपैड के साथ कनेक्ट करते हैं, यू विल नीड द पुल अप रेजिस्टर्स, ठीक है। अगर किसी दूसरे चिप के साथ कनेक्ट करते हैं देन यू वोंट नीड इट। अच्छा, इसके अलावा आपके पास पोर्ट 1 है। पोर्ट 1 का कोई दूसरा पर्पस नहीं है, सिंपल इनपुट आउटपुट के तौर पे यूज होता है। अलबत्ता पोर्ट 2 जो है, एक्सटर्नली आपने 64 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस करना है, तो 8 लाइंस तो आपको यहां से मिल गए पोर्ट 0 से, और 8 लाइंस आपको पोर्ट 2 से मिलेंगे फ्रॉम A8 टू A15। तो आपके 16 एड्रेस लाइंस पूरे हो जाते हैं।
तो अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहे हैं तो उस केस में ये दोनों पोर्ट एज एन एड्रेस लाइंस के तौर पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो पोर्ट 2 के दो पर्पस हैं, एक इट इज कैन बी यूज एज ए इनपुट आउटपुट पोर्ट, सेकेंडली इट कैन बी यूज एज ए हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस। अच्छा, इसी तरह पोर्ट 3 है, इसका एक तो डिफॉल्ट यूज है पिन नंबर 10 से पिन नंबर 17 जो है, ये देखिए पिन्स मेंशन है, आपका पोर्ट 1 पिन नंबर 1 to 8 है, आपका पोर्ट 2 जो है पिन नंबर 28 to 21 to 28 है, आपका पोर्ट 0 जो है पिन नंबर 32, ये 32 गलती से यहाँ पे आ गया, तो 32 से लेकर 39 तक है, ठीक है। अच्छा, सो पोर्ट 3 जो है इसके भी डुअल पर्पस है, एक ये कि इट कैन बी यूज एज अ सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट, सेकेंडली इसके इंडिविजुअल पिन के मल्टी फंक्शंस हैं, इट कैन बी यूज टू, जैसे कि ये फर्स्ट 2 पिन्स हैं, इट कैन यूज एज ए सीरियल पोर्ट, सो द फर्स्ट लाइन कैन बी यूज टू रिसीव डेटा, द सेकेंड लाइन कैन बी यूज टू ट्रांसमिट डेटा। तो अगर आपने सीरियली डेटा रिसीव करना है या ट्रांसमिट करना है, these two are your main lines। हम सीरियल कम्युनिकेशन में इसको फर्दर यूज भी करेंगे और फर्दर डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये जहन में रखें कि इन पिन्स के मल्टी पर्पस हैं, यू कैन यूज देम एज अ सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और पिन्स, और यू कैन यूज देम फॉर रिसीव एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ सीरियल डेटा। इसके अलावा पिन 3.2 और 3.3 में कैन बी यूज एज एन इंटरप्ट सोर्सेस, INT0 और INT1। आपको याद है इंटरप्ट क्या चीज होती है, इट टेक्स यू टू ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, जहां पे आपने अपना कोड लिखा होता है, इट परफॉर्म दैट एक्टिविटी एंड देन इट कम बैक। नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को एक्सटर्नली यही इंटरप्ट करती हैं, दीज आर द हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके अलावा पिन नंबर 3.4 और 3.5 ये T0 T1 अगेन ये भी इंटरप्ट ही हैं, लेकिन ये टाइमर्स को इंटरप्ट करती हैं, जो कि इनसाइड कंट्रोलर के अंदर टाइमर्स हैं। We will be discussing that in the next lecture, so you will get to know कि टाइमर क्या चीज है, ठीक है। सिंपल स्टॉप वॉच की तरह की चीज है, you start it, you stop it, it kind of create a delay for you। Then we have read write। तो ये दो पिन जब हम एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं तो आपको याद हो उसमें एड्रेस लाइंस चाहिए थी, डेटा लाइंस चाहिए थी, उसमें ALE चाहिए था, उसके अलावा उसमें रीड और राइट चाहिए था। तो these two pins can work as write and as a read, जिस तरह प्रोसेसर में हुआ करता था। So they are almost the same। अच्छा, this was about the pins। सारे 40 के 40 पिन हमने डिस्कस कर लिए। Before I move to the next section, so I can answer a few questions from you guys on the overall diagram in case there is any, or we will continue with the next section straight away otherwise। जी, हेलो जी जी सर काफी है, इतना काफी था, 1 घंटा हो गया। सर ये नहीं, काफी तो नहीं है, खैर we have to finish this whole all slides, but in case you have questions tell me now। सर ये चार पोर्ट जो है सर, जी जी, ये सारे हम और- इनपुट आउटपुट पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल। सर लेकिन हमारे पास तो ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, तो हम इसमें 32 की क्या जरूरत है सर? ये तो सारे 32 बनते हैं ना? नहीं, हर एक पोर्ट इंडिविजुअली 8 बिट का है, ठीक है जी। ना। एक के साथ आप कीबोर्ड लगा दें, दूसरे के साथ आप LCD लगा दें, तीसरे के साथ आप मतलब हर एक को इंडिपेंडेंटली इसके साथ चीजें लगाएं और उस पर डेटा ओके सर। 8 बिट का ही भिजवाएंगे। ओके सर, क्लियर सर। ठीक है जी, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर ये मुझे जरा ALE का थोड़ा कंफ्यूजन, कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर, वो जरा बता दें। देखें ALE क्या करता है, आपके पास 8 पिन्स पे एड्रेस भी है और डेटा भी है। तो ALE ये बताता है कि इस वक्त इन 8 लाइंस पे एड्रेस अवेलेबल होगा या डेटा अवेलेबल होगा। फिर एक्सटर्नल, आपको याद हो डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम एक छोटा सा चिप लगाते थे 8 बिट का लेच, जो कि पहले एड्रेस स्टोर करता था और फिर जो है डेटा उन्हीं लाइंस पे फिर डेटा अवेलेबल हो जाता था। रिमेंबर दैट। तो एड्रेस लेच इनेबल सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है कि इन 8 लाइंस पे एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एड्रेस अवेलेबल है या डेटा है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी, नेक्स्ट।
Next question. No? Okay, I guess we'll continue with the assembly language programming then. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि कंट्रोलर के अंदर आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो इसमें रजिस्टर्स हैं जिस तरह के, और सारे रजिस्टर इसमें 8 बिट के ही हैं, ठीक है ना, जो कि विच आर यूज फॉर डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ठीक है ना। 8 बिट का डेटा, 8 बिट का कंट्रोलर है, 8 बिट का इसमें प्रोसेसर है, उसमें 8 बिट का ALU है। तो जितनी भी इसमें कंप्यूटेशन होगी वो सारी 8 बिट की ही होगी। अच्छा, यूजुअली जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूजुअली द फर्स्ट बिट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज एज SD7। तो इसमें स्लाइड्स में जगह जगह पे LSB और MSB का वर्ड यूज होगा, तो ये आप ध्यान में रखें कि दैट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अच्छा, और क्या रजिस्टर्स हैं हमारे पास कंट्रोलर के अंदर? इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक्यूमुलेटर है, रजिस्टर B है, R0 to R7 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा DPTR है, डेटा पॉइंटर, विच इज एक्चुअली 16 बिट। इसमें दो रजिस्टर हैं, एक DPH है, एक DPL है। तो DPL इज शोइंग द लोअर बाइट एंड DPH इज शोइंग द अपर बाइट। ये दोनों एज ए कंबाइंड 16 बिट के तौर पे काम करते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज देम एज ए 8 बिट इंडिविजुअली। फिर प्रोग्राम काउंटर है विच इज 16 बिट। यू गाइस ऑलरेडी नो प्रोग्राम काउंटर क्या चीज है। इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर से स्लाइटली डिफरेंट है, बाकी सेम है, ठीक है ना। इसमें MVI टाइप इंस्ट्रक्शन नहीं है, एक ही इंस्ट्रक्शन सबके लिए यूज होता है, मूव। तो यू सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है ना, इट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अच्छा, अगर ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देखें, मूव A,#55H, अगर यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दिस 55 शुड बी ट्रीटेड एज डेटा। हैश मीन दिस इज डेटा। So once this instruction is executed, 55 will be transferred to accumulator. इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है move R0, A। तो ये रजिस्टर A से रजिस्टर R0 में वैल्यू ट्रांसफर कर लेता है। इसी तरह ये A से R1 में, A से R2 में, यहाँ पे फिर डायरेक्टली भी आप डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं। हैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि द डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू रजिस्टर R3, ठीक है। सो सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन है, इसमें MVI नहीं है। अगर आपने इमीडिएट डेटा ट्रांसफर करना हो तो यहाँ पे आप हैश लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे। अच्छा, अगर आपका डेटा में फर्स्ट कैरेक्टर 2 की जगह पे लेट से F है, A है या B है, तो उससे पहले 0 लिखना होता है, ताकि जब आपका कंपाइलर या असेंबलर प्रोग्राम को कंपाइल करे तो वो इसको एज एन इंस्ट्रक्शन ट्रीट ना करे। इस इज डेटा, तो इससे पहले आपको फिर 0 लगाना पड़ता है। ये सिर्फ असेंबलर के लिए है, अदरवाइज ये इंस्ट्रक्शन ठीक है, ठीक है। तो जब भी आपने कोई 23H की जगह पे F9 या A5 इस तरह लिखना हो तो उससे पहले 0 लिखना होता है। नेक्स्ट इज 8A, सोर्स। तो ये एक्यूमुलेटर के साथ सोर्स को 8 कर लेता है, ठीक है, और रिजल्ट अगेन एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि 25 को एक्यूमुलेटर में डालता है, फिर 34 को R2 में, और दोनों को 8 करता है, और इसके रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होंगे? एक्यूमुलेटर में, ठीक है। इसी तरह आप इसी प्रोग्राम को इस तरह लिख सकते हैं कि आप एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू डाल दी और डायरेक्टली 8A34, वो जो मैं एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की बात कर रहा, तो उसका ये एक एग्जांपल है। आप देखें यहाँ पे जो काम 3 इंस्ट्रक्शन से हो रहा था, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन से हो रहा है, ठीक है। सिंपल 8 का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसमें ADC और उस टाइप के इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल 8 का इंस्ट्रक्शन है और यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियसली ये चीज डिस्कस भी की थी कि द कंट्रोलर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज व्हिच इज बिटवीन zeros and one, बट यू कैन नॉट राइट डाउन दीज इंस्ट्रक्शन इन zeros and ones। तो हम क्या करते हैं, उसको असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, विच आर न्यूमोनिक्स, जो कि हमें समझ आती है, याद करने में आसानी होती है, बट दिस इज स्टिल ए लो लेवल लैंग्वेज। ये चीज़ ध्यान में रखें कि कंट्रोलर के कोर्स में हम C लैंग्वेज भी पढ़ेंगे,
कि किस तरह सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम कंट्रोलर के लिए लिखते हैं, किस तरह वो असेंबली में कन्वर्ट होता है, किस तरह वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है। सो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में यूजुअली क्या होता है, न्यूमोनिक्स होते हैं, उसमें ऑपरेशन स्पेसिफाइड होते हैं कि क्या कौन से वो हैं। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में दो और चीज़ें हैं, एक तो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दूसरे होते हैं डायरेक्टिव्स। Instructions are usually to be executed by the processor. Directives are for compiler या assembler। जहाँ पे आप किसी एडिटर में प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसके शुरू में ये डायरेक्टिव्स मेंशन होते हैं, जिसका जो कि assembler को बताता है कि इन इंस्ट्रक्शंस के साथ आपने करना क्या है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखें कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम और डायरेक्टिव्स में फ़र्क होता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ फॉर द प्रोसेसर और कंट्रोलर, directives are always for the compiler or for the assembler। अब मैं ये एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये शुरू में जो लिखा हुआ है org0h। अब ये org जो है ना, ये डायरेक्टिव है। ये क्या करता है, ये प्रोसेसर को या कंट्रोलर को के असेंबलर को बताता है कि ये जो नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, ये इंस्ट्रक्शंस आपने शुरू करने हैं मेमोरी लोकेशन 0 से। इनको स्टोर कहाँ पे करना है मेमोरी में, फ्रॉम 0। So this is actually a directive to the compiler or assembler। इसके अलावा यहाँ पे ये जो सेमीकोलन के बाद हम लिखते हैं these are the comments, you already know that, इसका प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये भी गायब हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह ये लेबल है, ये भी सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं ये गायब हो जाता है। ये these are instruction, move, add, sjump, these are एक्चुअली द इंस्ट्रक्शन। सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, डायरेक्टिव्स क्या हैं, कमेंट्स क्या हैं, लेबल्स क्या है। ठीक है ना। डायरेक्टिव्स आर फॉर कंपाइलर्स और असेंबलर, इंस्ट्रक्शंस आर फॉर योर प्रोसेसर और कंट्रोलर, एंड देन कमेंट्स आर फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, लेबल्स आर फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, यूजुअली तरीका क्या है, आप एक एडिटर विंडो होगी, ये आपको प्रॉपरली जो है नसर एक्सप्लेन करेगा कि आपने कील का कंपाइलर यूजुअली यूज होता है 89C51 के लिए, तो वो जिस तरह आप सी के लिए टर्बो सी वगैरह या C++ के लिए विजुअल स्टूडियो यूज करते थे, तो वहाँ पे आप पहले एडिटर में प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है ना, सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, और वो एडिटर इट कैन बी ए DOS बेस्ड एडिटर और इट कैन बी ए विंडोज बेस्ड एडिटर। ठीक है। उस एडिटर में आप प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसमें ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्ट या लिस्ट फाइल जनरेट करके देता है। आपका मेन जो फाइल होता है दैट इज योर हेक्स फाइल, एक्चुअली दैट इज जनरेटेड फ्रॉम योर प्रोग्राम। वो जब आप कंपाइल करके हेक्स फाइल जनरेट करेगा, वो फिर ट्रांसफर होता है आपके कंट्रोलर में, और कंट्रोलर उसको एग्जीक्यूट करता है। ये किस तरह होगा वो नसर आपको जो है फर्स्ट लैब में एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है। नॉर्मली एडिटर में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको स्टोर करेंगे .asm से, अगर असेंबली में लिखा हुआ हो, अगर सी में लिखा हुआ हो तो एज ए .c स्टोर करेंगे। ठीक है। फिर असेंबलर उसको रन करता है, उसकी .list फाइल जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल फर्दर लिंक प्रोग्राम के थ्रू उसकी फाइनल एप्स और हेक्स फाइल जनरेट करती है। ठीक है। अब ये सारे प्रोग्राम शुरू में हमें जब पढ़ाया जाता था तो ये सारे इंडिविजुअल प्रोग्राम होते थे जो ये काम करते थे। अभी कंपाइलर को आप बताते हैं कि जी एग्जीक्यूट इट, तो वो ये सारे फाइल्स एक ही रन में खुद ब खुद जनरेट कर लेता है। लेकिन आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इस तरह का प्रोसेस होता है। आजकल जो कंपाइलर कील का है, वो आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, ऊपर से कहते हैं कन्वर्ट टू हेक्स एंड इट जनरेट ऑल दिस फाइल्स इटसेल्फ। वो फाइल जब आप ओपन करेंगे यू विल सी कि वो उसमें क्या क्या होता है। ठीक है। ये जैसे कि एग्जांपल है लिस्ट फाइल। लिस्ट फाइल आप ओपन करेंगे तो वो आपको बताता है कि जी ये आपने प्रोग्राम लिखा था। ठीक है। ये आपका प्रोग्राम मूव R5, ये इसका कोड जो है, ये कोड इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। इसी तरह ये मूव A, R5 है, इसका कोड ये है, ये इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। तो ये सारा आपको बताता है कि एक्चुअली कंट्रोलर के अंदर आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन किधर स्टोर होगा। तो ये लिस्ट फाइल सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जनरेट करता है। ये जब आप कंपाइल करेंगे, यू ओपन द फाइल इन नोटपैड एंड यू विल सी दिस। ठीक है। एक और चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का है,
तो प्रोग्राम मेमोरी आपके पास कभी भी 0 से लेकर FFF तक जा सकती है। मीन इन टोटल यू कैन हैव 64 किलोबाइट ऑफ कोड। योर कोड कैन नेवर बी मोर देन 64 किलोबाइट फॉर ऑल द 8-बिट कंट्रोलर, जहां पे प्रोग्राम काउंटर का साइज 16 बिट हो। ठीक है, तो 8051 के फैमिली के जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर वो सारे जो है उनमें रोम जो है इट स्टार्ट फ्रॉम 00H एंड इट्स यूजुअली गोज अप टू FFF। ठीक है ना, आपने प्रोग्राम को हमेशा इस तरह लिखना है, प्रोग्राम काउंटर चूंकि 0 से स्टार्ट होता है तो आपका पहला इंस्ट्रक्शन फर्स्ट लोकेशन पे लिखा हुआ हो। तो ORG जो है ये डायरेक्टर कंपाइल को बताता है कि जी आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये लोकेशन असाइन करनी है। लोकेशन असाइनमेंट इसी के बेस पे होती है। अब ये एक एग्जांपल है, ठीक है, आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है ORG 00H, तो जब एग्जीक्यूट होगा तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये मेमोरी लोकेशन इसको असाइन करेगा, सेकंड इसको। तो ये इनसाइड द रोम एड्रेसेस आर दीस, 00 पे ये स्टोर है, 002 पे ये स्टोर है, 004 पे ये स्टोर है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट ट्वाइस क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये 2 बाइट का डेटा है। 7D25, सो इट्स 2 बाइट। यहाँ पे भी 2 बाइट है, यहाँ पे भी 2 बाइट, यहाँ पे 1 बाइट है। तो देखिए आपका इंक्रीमेंट 1 by 1 हो रहा है। तो ये आपका सिंपल 11 बाइट का एक छोटा सा प्रोग्राम है। एंड दिस इज हाउ इट इज स्टोर्ड ऑन द रोम। सो अगर आप रोम को इंडिपेंडेंटली चेक करना चाहें, देखें ये 7D25 था ना, 7D फर्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट लोकेशन में 25, नेक्स्ट में 7F, नेक्स्ट में ये। तो ये सारा कोड आपके रोम के अंदर इसी ऑर्डर में अरेंज होता है। अच्छा, एक चीज मैंने क्लियरली प्रीवियसली भी बता चुका हूँ, दिस हेक्स इज अगेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ हेक्स फॉर ओवर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे 010101 के फॉर्मेट में चीजें लिखी होती है। ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर ओवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखें कि फर्स्ट लोकेशन इज ऑलवेज लाइक दैट। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको ऑन करते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम 000, सो मेक श्योर upon executing the first code, operational code, which is 7D, is loaded and then it is transformed into the equivalent instruction. ठीक है ना, इसी तरह the next instruction and so on। ये स्टेप बाय स्टेप उसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन करवा रहा है। अच्छा, हमारे पास जो 8051 फैमिलीज हैं उसमें कौन कौन से प्रोसेसर में कितनी कितनी मेमोरी है। 89C51 में आपके पास 4 किलोबाइट है जिसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक जाती है। इसी तरह 89C420 है, उसकी रेंज 00 से 3FF तक जाती है। ठीक है, 3FF is actually this is 4 kilobyte, this is 16 kilobyte actually. You can calculate it किस तरह, ये 0FF है, 1FF is actually double of that which is 8 kilobyte and 3FF is actually double of that which is 16 kilobyte बनती है। And then we have DS5032 00 to 7FF which is 32 kilobyte. So these are the memories chip that are available in the market that you can utilize and they are all code compatible. Code compatible का मतलब ये है कि अगर आपने कोड एक कंट्रोलर के लिए लिखा हुआ है, it is acceptable by the others as well. अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखें, these are 8-bit controllers, so डेटा आपका साइज हमेशा 0 से FF तक या 0 से 255 इन डेसिमल तक जाएगा। आपके नंबर्स जो हैं इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, इफ यू गो फॉर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, सो नेचुरली आपकी रेंज +128 से -127 से +128 तक जा सकती है। और इज इट अदर वे अराउंड, इट्स -128 to +127 actually because 0 is considered as a positive number. अच्छा, एक नेक्स्ट डायरेक्टिव इज DB। अगर आपने कंट्रोलर में पहले से डेटा स्टोर करना हो तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन कि आप कंट्रोलर में विदाउट राइटिंग एनी इंस्ट्रक्शन डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपने ओरिजिन स्पेसिफाई करनी है, कहाँ पे स्टोर करना है, फिर आप लिखेंगे DB28, तो ये 500 लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये जो डेटा 1 डेटा 2 ये लिखा हुआ है, दीज आर द लेबल्स, यू कैन इग्नोर देम और यू कैन यूज देम। असल में इस लेबल का ये एडवांटेज होता है कि आप इसके लोकेशन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन जस्ट राइट डाउन @ डेटा 1, तो ये इसके लोकेशन को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे ORG 500H में DB28, सो ये सिंपल 28 की वैल्यू, अगर इसके साथ H कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है इट इज ए डेसिमल नंबर। अगर कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इट इज जैसे यहाँ पे इसके साथ B लिखा हुआ है दैट मींस बाइनरी नंबर, यहाँ पे H लिखा हुआ है इट मींस हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है,
आप देखें ये 500H से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डेटा स्टोर हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड स्टोर हुआ। अब आप चाहते हैं कि बाकी डेटा किसी और लोकेशन में स्टोर हो, तो आप क्या करते हैं, उसको दोबारा लिखते हैं ORG 510। तो इसके अलावा नीचे जो भी लिखा होगा वो 1 by 1 इस लोकेशन से ऑनवर्ड स्टोर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है DB2591H, तो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हर एक इंडिविजुअल डिजिट को एज ए कैरेक्टर लिया जाता है। तो 2 का ASCII जो है स्टोर होगा, फिर 5 का ASCII स्टोर होगा, 9 का स्टोर होगा और 1 का होगा। तो ये इन टोटल 4 बाइट का डेटा है जो कि आप सिंपल इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, इसके एक और एडवांटेज है, अगर आपको कहें कि आप पूरी तर्सी क्रो की स्टोरी लिखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनके दरमियान, और ऑटोमेटिकली 1 by 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्पेस सब कुछ जो है मेमोरी में स्टोर हो जाए। ये हम डिस्कस करेंगे LCD के प्रोग्रामिंग में, जहाँ पे आप मेमोरी में एक पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ लिखोगे और उसको लोड करोगे और वहाँ पे डिस्प्ले करोगे। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं यूज करना पड़ता, सिंपल DB लिखते हैं और उसके सामने लिख देते हैं जो चीज़ हो, लेकिन लोकेशन स्पेसिफाई करना जरूरी है। इसी तरह किसी नेक्स्ट लोकेशन में, डिफरेंट लोकेशन में आपने कुछ और चीजें स्टोर करनी है तो ORG 51H लिख के DB लिख दिया, और यहाँ पे जैसे माय नेम इज जो लिखा हुआ है तो इसमें M कैपिटल, इसका ASCII कैरेक्टर इक्वल टू 8 बिट वो एक लोकेशन पे स्टोर होगा, फिर M स्टोर होगा, फिर स्पेस स्टोर होगी, फिर N, फिर A, फिर M, ये सारा जो है मेमोरी में 1 by 1 स्टोर होगा। So this is a very easy way of storing data onto the memory using simple burner। आप इसमें ये लिख दें, this is considered as a program, it's not an instruction, it is just a directive। Is that loud and clear? Yes sir। Yes sir, clear sir। ठीक है। अच्छा, so the DB is not an instruction, ये ज़हन में रखें, DB is a directive। ठीक है। अच्छा, तो ORG हमने डिस्कस किया। इसी तरह जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है, इसमें हाल्ट वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, कंट्रोलर में, तो आपने इंड लिखना होगा आखिर में। अब इंड इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंड सिर्फ कंपाइलर को बताता है कि इसके नीचे जो लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है या नहीं, वो प्रोग्राम नहीं, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। तो आप नॉर्मली एडिटर में जब भी प्रोग्राम खत्म करते हैं उसके आखिर में आपको इंड लिखना पड़ता है। शुरू में ORG टू स्पेसिफाई कहाँ पे प्रोग्राम स्टोर करना है, और इसके इंड में इंड लिखना होता है। ठीक है, इंड इज अगेन ए डायरेक्टिव जो कि कंपाइलर को बताता है कि आपका प्रोग्राम जो है यहाँ तक है और ये खत्म हो गया। ठीक है, सो इट इज आल्सो ए डायरेक्टिव। इसके अलावा है इक्वेट। ये जिस तरह आप लोग कांस्टेंट वगैरह C++ में डिफाइन नहीं करते थे कि कोई वैल्यू बार बार यूज हो रही है तो उसको कोई नाम दे दिया है, ठीक है ना, तो ये इक्वेट उसी तरह यूज होता है। आपने जैसे कि काउंट यूज करना है तो इक्वेट 25, तो काउंट जहां जहां पे आप काउंट लिखेंगे इट विल बी रिप्लेस बाय 25। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हैश काउंट लिखा हुआ, इट मींस 25। तो आप किसी पर्टिकुलर नंबर को जो है नाम दे सकते हैं इक्वेट के जरिए। इट इज जस्ट लाइक डिफाइनिंग ए कांस्टेंट। ठीक है, so these are the 4 directives that we discuss and that are going to be used during the program। so पहले से आप ध्यान में रखें, they are not instructions, they are for programs or the compiler, sorry। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है इस कंट्रोलर के अंदर जाहिर बात है फ्लैग्स भी होंगे। फ्लैग रजिस्टर को PSW कहा जाता है। इट्स अ सिंपल 8 बिट रजिस्टर और इसमें 6 फ्लैग्स हैं, 2 अनयूज हैं, बाकी 6 यूज हैं। ठीक है ना, उसमें कैरी है, ऑक्सिलरी कैरी है, पैरिटी है, ओवरफ्लो है। इसमें साइन फ्लैग नहीं है, ज़हन में रखें। ठीक है, कैरी वही सेम डिफिनीशन है, व्हेन यू ऐड 2 8 बिट नंबर्स व्हेन द रिजल्ट इज मोर देन 8 बिट यू विल गेट ए कैरी। इसी तरह ऑक्सिलरी कैरी का भी वही फंक्शन है कि फर्स्ट 2 डिजिट से आपके पास अगर कैरी आता है तो नेक्स्ट में चला जाता है। ठीक है, पैरिटी का भी वही फंक्शन है। ओवरफ्लो इसमें क्यों यूज हुआ, इसलिए कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। सो अगर आप इस तरह करते हैं कि किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है इन्फिनिटी हो जाता है ना, तो उसके लिए ओवरफ्लो यूज होता है। इसी तरह अगर आप साइन नंबर में काम कर रहे हैं और आपकी रेंज है -128 से +127, ठीक है, अब आपने 126 के साथ 4 ऐड किया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 130 आएगा, लेकिन आपकी रेंज 127 तक है तो फिर आपका ओवरफ्लो फ्लैग इफेक्ट होगा। तो ये ओवरफ्लो इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द साइन फ्लैग दैट वी बीन यूज्ड अर्लियर ऑन। ठीक है ना,
अच्छा, इसके अलावा दो और फ्लैग्स हैं हमारे पास, PSW3 एंड PSW4, ठीक है ना। इसका क्या एडवांटेज है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन अ मिनट। ये थोड़ी इसकी फर्दर डिफिनीशन है, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और इनके एग्जैक्ट लोकेशन के, ये इसमें कहाँ पे है। ये F0 और डैश, दीज आर एम्प्टी फ्लैग, दे डोंट नीड टू बी यूज, यू कैन सिंपली इग्नोर दैट, ठीक है। So yes, we have only 13 more slides to go, so we'll just finish it today because we are going to discuss other stuff in the next class. अच्छा जी, so F0 and dash, these are empty bits, you can use it for some purpose, अगर आपने high stage programming करनी है, otherwise you can ignore them for now. ये दो फ्लैग क्यों इंपॉर्टेंट है, RS0 और RS1, ये क्या करते हैं, ये रजिस्टर बैंक डिसाइड करते हैं। होता क्या है कि आपके पास एक्चुअली, लेट मी शो यू समथिंग इफ इट इज इन हियर, या ये आपकी रैम है कंट्रोलर के अंदर, 128 बाइट इन टोटल, स्टार्टिंग फ्रॉम 000 टू 7F। नजर आ रही है आपको? यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, रैम क्या चीज है, ये एक रफ नोटबुक है। इसमें यह है कि आपने इसमें डिफरेंट पेजेस जो है, पहले 8 पेजेस आपने रजिस्टर बैंक 0 को असाइन कर लिए हैं, नेक्स्ट 8 पेजेस आपने रजिस्टर बैंक 1 को असाइन कर लिए, नेक्स्ट 8 पेजेस जो है आपने रजिस्टर बैंक 2 को, इसी तरह रजिस्टर बैंक 3, ये इनको नाम दे दिए। ये 8 पेजेस हैं और हर एक पेज पे आप 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मैं सिंपल नोटबुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह जो 20 से 1F से 2F तक 16 बिट है, दिस इज कॉल्ड बिट एड्रेसेबल। तो आप लोगों को याद है, आपकी जो मैथ्स की नोटबुक हुआ करती थी उसमें 4 खाने होते थे इंस्टेड ऑफ सिंपल लाइंस, रिमेंबर दैट? यस सर। हाँ, तो यू कैन कंसिडर दिस लोकेशन एज दैट। इसमें इंडिविजुअल पॉइंट्स को आप एज ए बिट एक्सेस कर सकते हैं। So these are 8-bit, 16-bit addressable location, 16 बाइट की, so 128 लोकेशंस है इसके अंदर, और उनके एड्रेसेस एग्जैक्टली 00 से स्टार्ट होकर 7F तक है। ये फर्दर जब हम यूज करेंगे तो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जहन में ये रखें कि इसमें से हर एक लोकेशन में 8 खाने हैं, उसके इंडिविजुअल लोकेशंस पे भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपकी जो रैम है, इस पूरे 128 बाइट के रैम के अंदर 16 बाइट की ऐसी लोकेशन है जिसके इंडिविजुअल लोकेशन पे आप एक बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, और वो कितनी है, 128 लोकेशंस है। तो ये इसकी खूबी है, ये याद रखें, ठीक है। टोटल 128 बाइट्स में 1F से लेकर 2F तक जो लोकेशंस हैं, दे आर एक्चुअली 1F पे ये खत्म होता है, 20 से 2F तक, सॉरी। तो दीज आर एक्चुअली 16 बाइट बिट एड्रेसेबल लोकेशन, जिसमें इंडिविजुअल लोकेशंस में आप एक बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। तो 128 बिट एड्रेसेबल लोकेशंस आपके पास छोटी छोटी आ जाती है। फिर आपके पास 30 से लेकर 7F तक, दिस इज कॉल्ड स्क्रैच पैड। स्क्रैच पैड का मतलब ये है कि दिस इज फॉर रफ वर्क, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने डेटा स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, एनीथिंग यू कैन डू दैट, ठीक है। इट्स सिंपल रैम लोकेशंस, रफ पेजेस हैं, आप उसको यूज करें द एनी वे यू वांट टू डू। अब आते हैं रजिस्टर बैंक की तरफ। होता यह है कि हमने अर्लियर डिस्कस किया कि हमारे पास रजिस्टर ए है, रजिस्टर बी है और रजिस्टर R0 to R7 है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया कि ये R0 to R7 है किस लोकेशन पे। होता यह है कि हमारे पास एक्चुअली ये रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं कि या तो फर्स्ट बैंक में या सेकंड में या थर्ड बैंक में ये जो 8 लोकेशंस हैं, इनको लेबल दे देते हैं R0, R1, R2, R7। तो इनमें से ही लोकेशंस को हम ये नाम दे देते हैं एंड देन वी यूज देम। तो R0 to R7 के फिक्स लोकेशंस नहीं है, ये वर्चुअल है। अब ये फर्स्ट 8 लोकेशन ऑक्युपाई करेंगे, सेकंड 8 करेंगे, थर्ड 8 करेंगे या फोर्थ 8 करेंगे, ये डिसीजन किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यूज। अगर ये वैल्यू 00 हो तो R0 to R7 की लोकेशन 0 से 07 तक हो। अगर ये इनकी वैल्यू 01 हो तो आप रजिस्टर बैंक 1 में है, आपकी R0 की वैल्यू 08 होगी और R7 की वैल्यू ये होगी।
तो इस तरह हम शफल करते हैं। ये जब हम प्रोग्राम करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन सिंपली इस बात का मतलब ये है कि आप इस पर्टिकुलर चंक ऑफ लोकेशंस को लेबल कर सकते हैं फ्रॉम R0 to R7, एंड व्हेन यू रेफर टू दोज लेबल्स they will actually either mean these first 8 location, these second 8 location, third 8 location or fourth, depending on the values of these bits. और इन बिट्स की वैल्यू चेंज कौन करता है, वो हम करते हैं। इज दैट क्लियर? सर रिपीट करें। नो सर रिपीट करें। अच्छा दोबारा चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास रैम है 128 बाइट, इसकी समझ आ रही है? यस 0 से लेकर 7 अब तक, ठीक है। इसमें हमने लोकेशंस डिवाइड किए हैं। 0 से 7 को हमने नाम दे दिया रजिस्टर बैंक 0, ठीक है। मेरे साथ साथ चले ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। यस सर। इसी तरह 08 से 08 तक हमने उसको लेबल किया रजिस्टर बैंक 1। जिस तरह आप अपनी नोटबुक खोलते हैं, फर्स्ट 8 बिट पेजेस को आपने लिख दिया DSP, नेक्स्ट 8 पेजेस इलेक्ट्रॉनिक्स 1, नेक्स्ट 8 पेजेस आपने लिख दिया इस्लामियात। यही करते हैं ना आप? यस सर। यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 8 पेजेस को रजिस्टर बैंक 3 दे दिया। अच्छा अब नेक्स्ट 16 पेजेस जो हैं दैट इज बिट एड्रेसेबल। इसमें वो 4 खाने हैं, हर एक बाइट में 8-8 डिफरेंट खाने हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल एक एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस और समझ नहीं आई। यस सर। देखें ये 20 से लेकर 2F तक 16 बाइट्स बनते हैं, ठीक है ना। और हर एक बाइट में यस सर, क्लियर सर। हर बाइट में 8 बिट हैं, और उनमें से हर बिट में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं इंडिविजुअली। पूरे बाइट में स्टोर करने की जरूरत नहीं, एक इंडिविजुअल 0 1 वहां पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये लास्ट पोर्शन जिसमें आपके पास 80 बाइट्स रह गए, ठीक है। ये 80 बाइट्स की जो लोकेशंस हैं ये रफ के लिए है। यहाँ पे आप एक बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं व्हेनेवर यू नीड इट, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रफ वर्क। अच्छा अब बात आती है कि ये जो आपने फर्स्ट 4 डिफरेंट बैंक्स बनाए, ये 8 8 8 8 का, इनमें से R0 to R7 कौन सा रजिस्टर बैंक यूज करेगा? ये यूज करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ये डिसीजन कहाँ से आता है? ये डिसीजन आपके पास आता है इनकी वैल्यूज RS0 और RS1 की वैल्यू। अगर 0 0 है तो R0 to R7 की ये एड्रेसेस होंगे, अगर ये वैल्यू है तो R0 to R7 की ये वैल्यूज होंगे, अगर ये वैल्यू है तो R0 to R7 ये वैल्यूज, अगर ये वैल्यूज हैं तो R0 to R7 की ये वैल्यूज होंगी। हम एक्चुअली इन लोकेशंस को लेबल दे रहे हैं R0 to R7, ताकि हम उनको इन नामों से जब बुलाएंगे तो इसका मतलब है कि ये लोकेशन, ठीक है। तो इन बिट्स का सिर्फ ये काम है। जब हम यूज करेंगे प्रोग्राम के दौरान मेरे ख्याल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ मैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो थ्योरी ज्यादा बोरिंग होती है, आराम से हजम भी नहीं होती, ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन। ठीक है सर। अच्छा कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जो है फ्लैग से इफेक्ट होते हैं? ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कैरी सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, पेयर ओवरफ्लो किससे इफेक्ट होता है, एक्सिलरी कैरी किससे इफेक्ट होता है। इट्स जस्ट अ टेबल जो हम टाइम टू टाइम यूज करेंगे, सो वी कैन ऑलवेज रेफर टू दिस टेबल। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पे, और ये शो कर रहा है कि किस तरह ये फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। सो मूव से फ्लैग नहीं इफेक्ट होता। जब एडिशन हमने की तो उससे कैरी भी इफेक्ट हुआ, ऑक्सिलरी कैरी भी, और पैरिटी भी हुआ। ये हमने प्रोसेसर में भी ये चीजें डिस्कस की हुई है। इज दैट क्लियर? सिंपल बाइनरी एडिशन है, ठीक है। और उसके बाद ये कैरी की वैल्यू, ऑक्सिलरी कैरी एंड सो ऑन। इसी तरह देयर इज अनदर प्रोग्राम, दोबारा यही शो करता है जब हम ये दोनों ऐड करते हैं, वी गॉट ए कैरी वैल्यू, ऑक्सिलरी कैरी एंड 0। ये बाइनरी एडिशन है इसकी, ठीक है ना। ये सिंपल है ना? यस सर। ओके यस सर। यस सर, क्लियर सर। ओके। इसी तरह अनदर एग्जांपल, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग कि कैरी, ऑक्सिलरी कैरी और पैरिटी इफेक्ट होता है क्या नहीं। अच्छा अभी हमने रैम की ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है पूरा लिस्ट, एंड आई एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी, ठीक है। किस तरह R0 to R7 की लोकेशंस जो है वो स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। रजिस्टर बैंक 0 के लिए क्या क्या है, 0 0 1 के लिए ये है, 1 0 एंड सो ऑन। अच्छा ये छोटे 2-3 प्रोग्राम है कि ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर का नाम लिखें।
अगर ये वैल्यू मैं R0 में भिजवा रहा हूँ R1 में, इसकी जगह पे मैं अगर इनकी लोकेशंस लिखूं तो इट मीन्स द सेम थिंग। ये दोनों प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम है। समझ आ रही है? हेलो? यस ये सर, सर, ये सर, समझ आ रही है। इसलिए कि R0 0 लोकेशन शो कर रहा है, R1 ये शो कर रहा है। लेकिन अगर मैंने सेट बिट PSW1 वर्क कर दिया तो इसका मतलब है कि मैंने रजिस्टर बैंक 2 सेलेक्ट कर लिया। अब यही इंस्ट्रक्शन जो है डिफरेंट लोकेशन शो कर रही है। बात समझ आ रही है? अब ये कहां पे स्टोर करेगी? 10H में और 11H पे इंस्टेड ऑफ 00 और 01 पे। तो ये सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि व्हेन यू चेंज द रजिस्टर बैंक, R0 और R1 की जो ओरिजिनल लोकेशंस हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज है स्टैक मेमोरी। कंट्रोलर के अंदर जो रैम है दैट इज यूजुअली यूज फॉर स्टैक मेमोरी। तो बाय डिफॉल्ट स्टैक पॉइंटर में हम 07 डालते हैं। स्टैक पॉइंटर कंट्रोलर के अंदर 8 बिट का है, ठीक है? इट इज नॉट 16 बिट, इसलिए कि इंटरनल मेमोरी इसमें है ही 128 बाइट, तो उसके लिए 8 बिट भी ज़्यादा है, इसलिए कि उसके लिए 7 बिट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, जब आप कंट्रोलर स्टार्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट स्टैक पॉइंटर में 07 की वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि जो आपकी ये रैम है यहाँ से ऑनवर्ड की जितनी भी लोकेशन है इट कैन बी यूज फॉर स्टैक मेमोरी, ठीक है? एंड इट इज इंक्रीमेंटेड एवरी टाइम यू ट्राई टू सेव समथिंग। रैम हमेशा स्टैक मेमोरी के तौर पे यूज होता है, ठीक है? लेट मी डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट वर्क्स। अच्छा, इसमें पुश और पॉप के इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके पुश और पॉप और जो प्रोसेसर है उसमें यही फर्क था कि वहां पे 2 बाइट एट एनी वन टाइम स्टोर होते थे, 2 बाइट एट एनी वन टाइम रिट्रीव होते थे। यहाँ पे एक होता है, ठीक है, एट एनी वन टाइम। और लेट्स से अगर आपने रजिस्टर को रेफर करना है तो दे कैन बी रेफर्ड बाय देयर सेकंड नंबर, नॉट बाय आर। सो पुश 6 मीन आर पुश R6, तो ये R6 की वैल्यू स्टोर कर लेता है। पुश 1 मीन R1 की वैल्यू ये स्टोर कर दी। पुश 4 मीन R4 की वैल्यू ये स्टोर कर दी। तो जब आप पुशिंग करते हैं द वैल्यूज, आपका स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होता जाता है और वैल्यू स्टोर होती जाती है। ये सिंपल पुश इंस्ट्रक्शन के वो है। और स्टैक मेमोरी किस तरह अपडेट होती है? शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 07 थी। सो व्हेन यू से पुश 6 में क्या 25 वैल्यू है दैट इज स्टोर्ड हियर। अगर व्हेन यू से पुश 1, R1 में क्या वैल्यू है 12 दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड हियर। इसी तरह पुश 4 करेंगे तो R4 की जो वैल्यू है दिस गोइंग टू बी स्टोर्ड हियर। सो दिस इज फॉर द पुश इंस्ट्रक्शन। और फिर आप पॉप करते हैं, अगेन 1 बाइट एट एनी वन टाइम इज रिट्रीव्ड। तो अगर आपकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 0B है और ये आपके पास स्टैक मेमोरी में स्टोर है, तो जब आप पॉप 3 करेंगे तो R3 में पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? जब आप पॉप 5 करेंगे R5 में नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। आप पॉप 2 करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आपके R2 में आ जाएगी। सो पॉप एंड push, they are exactly opposite of each other. That's it for today, I guess. So Yes sir. we can have discussion now in case there is any.